Good morning, students. Today we are at the very last topic of our chapter, that is the adjustment of capital, and we will do question number 31 from your book T.S. Garewal. So from this book, this question, I do think that this is the most difficult question from all the rest of the questions. So we are having main 3 questions from this topic, 3 or 4 questions, but from these 3-4 questions we are doing the toughest question in our class today. So this is also the very last topic of the chapter, change in profit sharing ratio among the existing partners. So let's start reading the question. So as per the question number 31 of book T.S. Garewal, Suresh, Ramesh, Mahesh and Ganesh were the partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:3:3. So on 1st April 2016, the balance sheet was given, in which we can see there is a workman compensation reserves. So from the above date, the partners decided to share the profits equally. For this purposes, the goodwill of the firm is valued at 90,000, and it was also agreed that the claim against workman compensation reserve will be estimated at rupees 1 lakh, and the fixed assets will be depreciated by 10%. And the capitals of the partner will be adjusted according to new profit sharing ratio. For this purpose, the necessary cash will be bought or paid by the partners as the case may. So we have to prepare the revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the reconstituted firm. So from the given question, we came to know that the workman compensation reserve, that is the liability, is increased from 75,000 to 1 lakh, and the fixed assets has been depreciated by 10%. So we are having two main entries in revaluation account, and we are given goodwill. So we have to do the adjustment of goodwill. So let's start doing this question. First of all, we will make the revaluation account. So as per the revaluation account, here we write debit, credit, revaluation account, then particulars, amount in rupees, particulars, amount in rupees. So in the question we came to know that the fixed asset has been depreciated. So when the asset decreases or the liability increases, we write the entry over here. So depreciation on fixed assets, that is 60,000. And we came to know that the provision for claim has increased. So next point is to provision for claim by amount 25,000. There is no other entry other than these two. So we get loss. So we will write by revaluation loss. Among the 4 partners, that is Suresh, Ramesh, Naresh and Ganesh, capital account. So the total is 85,000. For this we make the working note first of all. As per the working note, we have the old ratio of the partners, that is 2:2:3:3. And according to old ratio, we know that
these two partners have same ratio and these two partners have the same ratio. So we can accordingly calculate a single ratio, right? We can accordingly calculate the ratio of one of these. So 85,000 into 2 by 10, क्योंकि इनका टोटल 10 है, that we get 17,000. And 85,000 into 3 by 10, here we get 25500. So here amount will be 17,000, 17,000, 25500, 25500. So this ends our revaluation account with 85,000 balance. The next step is to prepare the partner's capital account. Before going to that step, I want to clear one thing. As we all know, if the asset increases and the liability decreases, then the entry will post over here. But if the liability increases and the assets decreases, then where we post the entry? Over here, right? So on this basis, we have posted two main entries, that is related to depreciation and provision for claim. Now we will make the capital account. So let's start making the capital account. हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, तो हम कॉलम भी 4 बनाएंगे. 1 2 3 4 5 लाइन्स. 1 2 3 4 5 लाइन्स. particulars Suresh, Ramesh, Naresh and Ganesh. Suresh, Ramesh, Naresh and Ganesh, right? तो हमारे पास बैलेंस दे रखा है ऑलरेडी, तो बाय बैलेंस बीडी. बैलेंस बीडी हमारे पास है 1,50,000, 2 लाख and 2,50,000. Then second point, we can post this loss over here. So to revaluation loss, $17,000, 25500 and 25500. Then नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें अपना क्या निकालना है, न्यू रेशियो देखनी है. व्हाट इज अवर न्यू रेशियो? तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है न्यू रेशियो वी आर हैविंग 1:1:1:1. तो हमें पता है एक तो रिवैल्यूएशन की एंट्री आ गई, एक हमारे पास बैलेंस है. अब हमें गुडविल की एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी. तो हम सुरेश और रमेश दोनों में से एक का निकाल सकते हैं, बिकॉज इन दोनों पार्टनर्स का सेम शेयर है. तो इन दोनों का अगर सैक्रिफाइसिंग शेयर देखें तो पहले था 2/10, अब हो गया 1/4. तो वी आर लेफ्ट विथ -2/40. ऐसे ही अगर महेश
सॉरी नरेश और गणेश का देखें तो पहले था हमारे पास 3/10 और अब हो गया 1/4, तो ये आ गया 2/40। तो ये माइनस में है, मतलब ये लोग गेन में है और ये हमारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि हमारी एंट्री पास हो सकती है, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन से हैं हमारे पास, सुरेश रमेश। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश और गणेश, टू गणेश के नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गणेश कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 की गुडविल है, 90,000 इंटू 2/40, देन वी गेट अमाउंट एट इक्वल्स टू 4,500। तो ये हमारे पास, यहाँ पे हम एक सिंगल एंट्री नहीं पास कर सकते कि यहाँ पे हम एक ही हेड में इन दोनों को पास कर दें, क्योंकि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं। तो हम इस अमाउंट को 4,500 को 2 पार्टनर्स में डिवाइड करके 2 पार्टनर्स में एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा क्रेडिट क्या हो रहा है, नरेश और गणेश, और डेबिट कौन हुआ है, सुरेश और रमेश। तो सुरेश और रमेश में हम अमाउंट डाल देंगे। तो नरेश और गणेश को कहाँ से मिला होगा, बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट और बाय रमेश कैपिटल अकाउंट। और इन्होंने किनको पे किया है, तो नरेश कैपिटल अकाउंट एंड टू गणेश कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें बैलेंस निकालना है। तो हम इसका चारों का बैलेंस निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज दी, यहाँ पे मैंने स्टार कर दिया, ये आपको पता लग जाएगा, याद रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हमें कैलकुलेट करना है हमारी एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल इक्वल्स टू, हमारे पास एक है सुरेश, रमेश, नरेश एंड गणेश। सुरेश का 1 लाख माइनस 21500, इन दोनों का टोटल, तो वी आर लेफ्ट विथ 78500। इधर क्या है, 1,50,000 माइनस 21500 और इधर हमारे पास आ गया 128500। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नरेश का टोटल बना 204,500 माइनस 25500, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 17900। और गणेश की हमारे पास क्या अमाउंट है, 254,500 माइनस 25500, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 229,000। इन चारों का हम टोटल करेंगे। नाउ वी विल टोटल ऑल दीज 4। तो इन टोटल इनका टोटल बन गया 615,000। इन्हें हमें न्यू रेशियो में डिवाइड करके न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो हर एक पार्टनर का 1/4 शेयर है, तो 615,000 इंटू 1/4 अगर करें तो ईच पार्टनर विल गेट 153750। ठीक है जी। तो अब हर पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल ये होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD। तो ये कितनी अमाउंट है, 153,750, 153,750,
153750, 153750 और फिर इन सभी का टोटल करेंगे। व्हेन वी विल टोटल, तो हम पहले इधर का फर्स्ट इसको लेते हैं। जब हमने इनके टोटल किए तो लेट्स टोटल 17,000 प्लस 2250 प्लस 2250 प्लस 153750 माइनस 1 लाख। तो हमारे पास अमाउंट आई इधर बाय कैश। डेफिशिएंसी जो है वो कैश में होगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और डिफरेंस कितना है 75,250। ठीक है जी, ऐसे ही हम बाकी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनका पहले टोटल लिखते हैं 175,250, 175,250। ऐसे ही अगर हम इधर कैलकुलेट करेंगे तो इधर की डेफिशिएंसी 25,250 है, और फिर इधर भी हमारे पास बैलेंसेस निकल आएंगे कैलकुलेट करना। तो इधर हमारे पास डेफिशिएंसी 25,250 है और इधर है 75,250। फिर हम इनके टोटल कर देंगे 175,250, 175,250, ये हमारे पास 204,500, 204,500, 254500, 254500 बन गई हमारा कैपिटल अकाउंट। देन नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो लेट्स मेक बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट हमें यूज़ करना है। अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। तो हमारे पास फिक्स एसेट है 6 लाख के, उनमें डेप्रिसिएशन हमने 60,000 की लगाई, तो हमारे पास फिक्स एसेट रह गए 540000। करंट एसेट थे सेम एज इट इज़, कोई चेंज नहीं। तो करंट एसेट हमारे पास है 345,000। तो इनका हमारे पास टोटल आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 885000। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास चारों पार्टनर्स की कैपिटल का यहाँ पे हमने टोटल किया ही था, तो हम एक बार दोबारा से शो कर देंगे। सुरेश, रमेश, नरेश एंड गणेश, कैपिटल अकाउंट। तो चारों का 153750 वो लिख देंगे। और जब चारों का टोटल किया तो हमारे पास यहाँ पे है 615,000 से। और फिर हमें पता है क्लेम था वो हमारा इंक्रीज़ हो गया 75,000 प्लस 25,000, तो ये बन गया 1 लाख रुपीज़। और सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे सेम एज इट इज़, तो 1,70,000। और जब हम इनका टोटल करेंगे तो दिस विल बी द टोटल। सो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें अपनी बैलेंस शीट को इक्वलाइज करना है। तो हमारी बैलेंस शीट भी इक्वल हो गई है, हमारी एडजस्टमेंट्स भी हो गई हैं, एडजस्टेड कैपिटल इसमें मेन पॉइंट है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क्स क्वेश्चन कवर होता है। सो वी आर टोटली डन विद दिस चैप्टर, and tomorrow we will start our new chapter, that is the admission of capital. So your work for today is that you have to complete the notes of this chapter, that is change in profit sharing ratio among the partners. In case you are having any doubt, you can message me anytime, and
you can get the PDF file of the related questions that we have covered in our classes. So see you tomorrow. Thank you.